यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्री श्रीमती देवांगे से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की
श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आने वाली बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, इस्कॉन रेवाड़ी की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagvat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopakumaraya Govindaya namo namaha. Om ajnanatimirandhasya jnananjana shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai shri guruve namaha. Shri chaitanya manobhishtam sthapitam yena bhutale swayam rupa kadamayyam dadati swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. तो इस काम के अंदर गाड़ी की तरफ से मानस भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कथा के दूसरे दिन में। और विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे इस देव स्वप्न किशोर जी का। तो सभी भक्त दोनों हाथ खड़े कीजिए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और साथ में स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित जिसके सभी को किशोर जी जो प्रभु जी के साथ आए हैं। सारों से निवेदन है कि बहुत ध्यान को श्रवण कीजिए, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए और पूरी कथा तक आप बैठे रहिए।
कल काफ़ी लोग बिना प्रसाद के चले गए थे। मेरा सबसे निवेदन है कि पूरी कथा आप सुनिए और अंत में प्रसाद है उसको ग्रहण करके ही वापस करें। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस बलराम पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित बलराम कथा के दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त हैं जो आज कल नहीं आए थे, वो आज ही आए हैं पहली बार? अरे ओके, तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं, अगर किसी भक्त के अंदर भागवतम सुनने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और विशेषकर सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम दशम स्कंद में बताते हैं कि अगर कोई बलराम जी के विषय में सुबह और शाम श्रवण करेगा, निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो आप लोग बलराम कथा सुनने आए हैं और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें बलराम जी के विषय में सुनने और कहने को मिल रहा है, तो इसका हम पूरा लाभ उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी उत्सव में जहाँ कथा चल रही हो, श्रोता भी होता है और वक्ता भी होता है। तो आपके हिसाब से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रोता की वक्ता? वक्ता? श्रोता, क्योंकि आप श्रोता है अच्छी निश्चित रूप से श्रोता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर श्रोता उत्साहित है तो वक्ता के बैठे हृदय में बैठे हुए परमात्मा उनको प्रोत्साहित करते हैं बोलने के लिए। अगर श्रोता हतोत्साहित है तो वक्ता के हृदय में बैठे हुए परमात्मा उनको उत्साहित ही नहीं करेंगे। तो आपका उत्साह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी शुभकामनाएं चाहिए, ताकि हम सब मिल के श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए राम जी का गुणगान कर सकें और अपने आप को शुद्ध कर सकें। तो कल हमने चर्चा की थी कि बलराम जी की 2 असुरों का उन्होंने वध किया था वृंदावन में। किन 2 असुरों का वध किया था जो कल आए थे, बताएंगे? हाँ जी माता जी। धेनुकासुर और प्रलंबासुर। और ये भी चर्चा की थी, इन असुरों का वध किया। और ये असुर हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे हृदय में बैठे कुछ अनर्थों को इंगित करते हैं। तो धेनुकासुर कौन से अनर्थ को बताता है? हाँ, अविद्या, मैं और मेरा। पूरा संसार इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं और मेरा। कितनी भी लड़ाइयाँ देख लो आप, घर में लड़ाई देख लो, समाज में लड़ाई देख लो, 2 देशों के बीच में लड़ाई देख लो, आज यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, मैं और मेरा। सारी लड़ाई झगड़ क्या है? मैं और मेरा। ये बहुत बड़ी अविद्या है। जब हम शरीर त्यागेंगे, ना मैं रहेगा ना मेरा रहेगा। तो ये अविद्या, इसका नाश होता है धेनुकासुर की कथा सुनते हैं तो। और प्रलंबासुर की कथा कौन सा अनर्थ बताती है हमारे हृदय में है? हाथ खड़ा कर बताइए जिसने। हाँ जी, काम वासना, भोगने की इच्छा। स्थूल रूप में पर पुरुष पर स्त्री का संग करना, सूक्ष्म रूप में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा रखना। ये दोनों ही प्रकार की काम वासनाएं हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं। और प्रलंबासुर का वध करके, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, तो यह प्रलंबासुर बड़ी तीव्र गति से भाग रहा था। बलराम जी को कंधे पे बिठा के आकाश की ओर उड़ रहा था, तो बलराम जी भारी हो गए। तो जब हमारे हृदय में हमें काम वासना सताएं, तो गुरु का मतलब होता है भारी। गुरु के आदेशों का स्मरण करेंगे तो इससे हम छुटकारा पा पाएंगे। कल हम चर्चा नहीं कर पाए समय कम होने के कारण। आज यहाँ से शुरू करते हैं कि धेनुकासुर और प्रलंबासुर अपने पिछले जन्म में क्या थे और बलराम जी ने उनका क्यों वध किया। तो इसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है। गर्ग संहिता भी एक शास्त्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हुआ है। तो बताते हैं कि जो बलि, राजा बलि हैं, बलि महाराज, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था साहसिका। और ये बहुत बड़ा असुर था। असुर का मतलब होता है, भगवान गीता में बताते हैं, गीता के 16 अध्याय में, भोगने की प्रवृत्ति रखना। तो ये असुर 10,000 स्त्रियों को लेकर गंधमदान पर्वत पे नाच रहा था, एंजॉय करने का प्रयास कर रहा था, अपनी तरफ से भोग विलास कर रहा था। और उसी पर्वत की गुफाओं में महान मुनि दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। और इतना शोर शराबा आया, बैंड बजे की आवाज़ आई, दुर्वासा मुनि की तपस्या भंग हो गई। दुर्वासा मुनि बाहर आए
बहुत लंबी वर्षों की तपस्या के बाद बहुत दुबले पतले हो गए थे और जटाएं बढ़ गई थी, और उनको देखा इस असुर को, ये मदिरा पान किए हुए स्त्रियों के साथ नाच रहा है और दुर्वासा मुनि को देखकर उनका मजाक उड़ा रहा है। तो दुर्वासा मुनि ने बोला, तुम इतनी गहरी देहात्म चेतना में हो, अपने आप को शरीर मान रहे हो और सोच रहे स्त्रियां तुम्हारी हैं, तुम उनका भोग करोगे, ये गधे की मानसिकता है, तुम गधा बनोगे। असुर तो तुम हो ही, लेकिन गधे का रूप धारण कर लोगे। बाद में उसने रियलाइज़ किया ये तो दुर्वासा मुनि है, इनका श्राप तो व्यर्थ जाएगा नहीं, घबरा गए और क्षमा मांगने लगे। और फिर दुर्वासा मुनि ने उन पर कृपा करते हुए बोले कि निश्चित रूप से तुम गधा हो, असुर भी बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार बहुत सुंदर तरीके से होगा। द्वापर युग के अंत में बलराम जी अवतार लेंगे और ताल वन में तुम्हारा वध करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और कृष्ण ने क्यों नहीं वध किया धेनुकासुर का? क्योंकि जब कृष्ण ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो प्रहलाद महाराज को वचन दिया कि आपके वंश में आने वाले किसी असुर का हम वध नहीं करेंगे। इसे बाणासुर का भी वध कृष्ण नहीं करते। तो भगवान ने, कृष्ण ने धेनुकासुर का वध करने का पूरा श्रेय किसको दे दिया? बलराम जी को। तो इस प्रकार से उनके पूर्व जन्म की कथा थी। इसी प्रकार से प्रलंबासुर, पिछले जन्म में एक बार क्या हुआ, कुबेर जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके बहुत बड़ा धन है उनके पास, बहुत सुंदर उनका भवन है, उस भवन में सुंदर सुंदर बगीचे हैं, उसमें फूल हैं, उन फूलों से वो शिव जी की पूजा करते हैं और उन फूलों को इकट्ठा करके वो एक स्थान पर रख देते हैं और उस स्थान में उसकी रक्षा के लिए किसी चौकीदार को नहीं छोड़ते, बस केवल घोषणा करके चले जाते हैं जो उन फूलों को छुएगा वो असुर बन जाएगा। इतना ही बहुत है। कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं रखनी, कोई चौकीदार नहीं रखना, श्राप दे के चले गए, बस टू हुम सो एवर इट में कंसर्न, ऐसे बोल के चले गए, जो भी आएगा कहीं से भी आएगा जो उन फूलों को छुएगा जो कि शिव जी की पूजा के लिए है वो असुर बन जाएगा। तो एक गंधर्व थे जो कि विष्णु भक्त थे, उनका नाम था विजय। वो पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो घूमते घूमते आ रहे थे, वीणा बजाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए। उनको एक फूल दिखाई दिए, बोले भगवान की पूजा के लिए फूल ले लेता हूँ। जैसे फूलों को छुआ असुर बन गए। बड़े घबरा गए, कुबेर के पास गए, बोले ये क्या हो गया? कुबेर जी ने बोला आप तो सज्जन व्यक्ति हैं, आप तो विष्णु भक्त हैं, आपके साथ गलत हो गया, लेकिन मैंने श्राप दिया हुआ तब कैसे होगा? बोले घबराइए मत, अगले जन्म में आपका उद्धार कौन करेंगे? स्वयं बलराम जी करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये असुर जिनको कृष्ण लीला में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, इनका भी कुछ इतिहास होता है। कृष्ण के हाथों या बलराम जी के हाथों मारे जाना भी कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे भी सौभाग्य चाहिए। तो आज हम भगवान बलराम जी की कुछ द्वारका लीला की चर्चा करेंगे। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र हैं, जामवती के पुत्र, उनका नाम है साम। आप में से कितने भक्त लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं प्रतिदिन? एक पुस्तक जरूर लीजिए, इसमें सारी कहानियां हैं। इसमें साम का विवाह करके अध्याय है, 67वां अध्याय है, उसको पढ़िए, बहुत सुंदर कथा है। तो साम का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब क्या होता है? माता, अम्बा देवी बोलते हैं ना। आम का मतलब है माता, साम का मतलब है जो हमेशा माँ के साथ रहता है, मामाज बॉय, माँ का लाडला। जो माँ का लाडला होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो जो साम थे उनको जामवती सुता भी कहते हैं, वो बड़े लाडले थे, जो जिद कर ली वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे तो कृष्ण के सारे गुण उनमें थे। कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। हर एक रानी से कितनी संतान उत्पन्न की उन्होंने? 11। हाँ, वेरी गुड। 10 पुत्र और 1 पुत्री, और सभी के सभी उनके पुत्र कृष्ण के समान ही गुणवान। लेकिन साम की स्पेशलिटी क्या थी कि पूरे यदुवंशियों को बहुत प्रिय थे, लाडले थे और माँ के साथ रहते थे हमेशा, और बड़े जिद्दी भी थे, लेकिन बड़े अच्छे गुण भी थे उनमें। तो दुर्योधन की बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, जो बहुत सुंदर थी, सुशील थी, और लक्ष्मणा से विवाह करने के लिए बहुत से राजकुमार चाहते थे। तो स्वयंवर हुआ,
लेकिन साम की इच्छा थी कि लक्ष्मणा से मैं विवाह करूं, लेकिन लक्ष्मणा साम से विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन साम बड़े जिद्दी बालक थे, बच्चे थे, नहीं नहीं मैंने तो उसी से विवाह करना है। तो स्वयंवर जब चल रहा था, क्योंकि साम बहुत बहादुर थे, स्वयंवर में चले गए और सब राजकुमारों के बीच में से लक्ष्मणा का अपहरण करके चले गए। बुद्धिमान थे, बलवान भी थे, लक्ष्मणा का अपहरण करके चले गए। जब लक्ष्मणा का अपहरण हो गया तो कुरुवंश जिसमें बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके अहंकार को ठेस पहुंचे। हमारी बेटी लक्ष्मणा जो कि साम से विवाह नहीं करना चाहती थी और उसका हाथ मांगने के लिए इतने बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे, उन सब के बीच में यदुवंशी आया साम और हमारी बेटी को उठाकर ले गया। ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। यदुओं की ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? इन यदुओं को राज करने का अधिकार हमने ही दिया है और अब ये हमारे ऊपर ही रोक जमाएंगे। चलो साम को वापस लेकर आते हैं। तो बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण और सोमदत्त के 3 पुत्र थे, शाल, भूरी, भूरिश्रव, तीनों बड़े बड़े महारथी। तो 6 महारथी जाते हैं एक छोटा सा बालक साम से युद्ध लड़ने के लिए। जब जा रहे हैं तो भीष्म पितामह और विदुर ने उनको सलाह दी, देखो भाई, उसने हमारे बेटी का हाथ पकड़ लिया है, अब हमारी राजकुमारी से और कोई विवाह तो करेगा नहीं, मानो या ना मानो अब वो हमारा दामाद है। पूर्व काल में क्या होता था, अगर किसी अविवाहित लड़की का हाथ किसी ने पकड़ लिया तो वही उसका पति बनेगा, बस कोई दूसरा व्यक्ति उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। आज के युग में अगर ये इस नियम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूर्व काल में वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता था, आप सोच रहे हैं। लेकिन आजकल पाश्चात्य देशों की संस्कृति कहें या दुष्कृति कहें, उसकी अंधाधुंध नकल मारने के कारण हम सोच रहे हैं हम बड़े आधुनिक हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी सारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। बताया जाता है यत्र पूजेष्टु नारीषु तत्र रमन्ते देवता। जिस समाज में नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। और इस संसार के 2 महायुद्ध एक नारी के अपमान के कारण ही हुए। कौन कौन से महायुद्ध हुए? 2, महाभारत और रामायण। दोनों क्या हुआ? नारियों के अपमान के कारण। और आजकल आप विदेशों में जाएंगे और भारत में भी हो रहा है, नारी मुक्ति आंदोलन, है ना, कि लिबरेशन होना चाहिए, उसके नाम पे स्त्रियों का शोषण हो रहा है। लेकिन वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को बहुत सुरक्षित रखा जाता था, बहुत सम्मान दिया जाता था। तो भीष्म पितामह और विदुर ने कहा अब वो हमारे दामाद हैं, उनको मार तो सकते नहीं, बस थोड़ा पकड़ के ले आओ। अब देखिए क्षत्रियों का स्वभाव देखिए, उनको मालूम है साम हमारा दामाद है, मारना है नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ना है। क्यों? हमारे अहंकार पे ठेस पहुंची है कि हमारे सामने ही आके उस लड़की को उठा के कैसे ले गया, और कल ये बात सबको मालूम चलेगी तो हमें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में बालक आया, आपकी बेटी को उठाकर ले गया। ये अहंकार, बस इस अहंकार पे ठेस लगी तो नहीं, अब तो उससे युद्ध लड़ना ही लड़ना है। तो 6 महारथी एक तरफ और साम राजकुमार एक तरफ। लेकिन साम ने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध किया। उसने देखा 6 महारथी खड़े हैं सामने, दुर्योधन है, कर्ण है, भीष्म पितामह है। उसने क्या किया, एक साथ 6 को तीर मारे, और 6 के रथ में 4 घोड़े थे, 24 घोड़ों को एक साथ घायल कर दिया, और साथ ही साथ सबके रथियों को, जो रथ चला रहे थे, उनको घायल कर दिया, और 6 महारथियों पर भी तीर छोड़े। ऐसा कर तो देखा, सबने बड़ी तारीफ की, हमारा दामाद है लेकिन बढ़िया बहुत बहादुर है, ये तो हमारा सौभाग्य ऐसा दामाद है, लेकिन शरारती है, इसको सबक तो सिखाना ही है, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो फिर कर्ण ने और सबने मिल के साम को हरा दिया, उसका धनुष तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया और उसको रस्सियों से बांध लिया। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है कि 6 एक तरफ और एक अकेला एक लड़ रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, उसको पकड़ के यहाँ पर ले आए। वहाँ पे सारे यदुवंशी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा प्यारा बालक साम कब आएगा वापस। और साम को
युद्ध कला में बलराम जी ने ही प्रशिक्षण दिया था। तो सब प्रतीक्षा, सब बलराम जी को बहुत प्रिय था कि आया नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी वहाँ नारद मुनि पहुँच जाते हैं, नारायण नारायण कहते हुए पहुँच जाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो, आपको मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? 6 महारथियों ने सारे युद्ध के धर्मों का साइड में रख के आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और पकड़ कर ले गए हैं ना। नारद मुनि ने तुरंत उनको अपडेट कर दिया। पहले टाइम में कोई व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आवश्यकता नहीं है, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है वाईफाई पासकोड क्या है सीधा नारद मुनि जी वहाँ पहुँच जाते थे। अक्सर हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में नारद मुनि जी को बड़ा एक जोकर सा दिखाया जाता है और नारद मुनि को ऐसे दिखाया जाता है कि सब जगह जाके लड़ाई करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद मुनि ऐसी सेवा क्यों करते हैं? जाके युद्धों को बता दिया कुरुओं ने ऐसा किया है, ऐसी सेवा क्यों करते हैं नारद मुनि? नारद मुनि भगवान के बहुत उत्तम भक्त हैं। इससे पहले क्या आगे जाके क्या करेंगे वो, जब कंस को मालूम नहीं था कि कृष्ण कौन है, वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान कौन है, तो नारद मुनि जाके ही कंस को बताया था ये जो नंद महाराज का बेटा घूम रहा है यही देवकी और वसुदेव की संतान है, वसुदेव ने आपको धोखा दिया था। तो नारद मुनि ऐसा काम क्यों करते हैं? हाँ, कथा को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए, है ना, स्पीड से कथा चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो उनको मालूम है जितनी कथा आगे बढ़ेगी भगवान की लीला सुनने का, देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो तुरंत पहुंच गए यदुओं के पास। अरे आप ये प्रतीक्षा कर रहे हो और वहाँ कुरुओं ने आपके बालक को बंदी बना दिया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। सुनते ही सारे यदुओं को गुस्सा आ गया और उग्रसेन जो राजा थे बोले चलो अभी युद्ध की तैयारी करो, अभी कौरवों से हम युद्ध करेंगे। कृष्ण बिल्कुल चुपचाप रहे। कृष्ण हमें सदाचार सिखा रहे हैं। कृष्ण ने सोचा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे के लिए मैं लड़ाई झगड़ा मैं क्यों करूँ अपना लड़ाई झगड़ा। देखता हूँ राजा उग्रसेन क्या जिम्मेवारी उठाते हैं। देखिए कितना मतलब कि आप देखिए सदाचार की बात है। और कृष्ण ये भी जानते थे कि बलराम जी की क्या योजना है। जब ऐसे सब गर्म हो गए, हाँ हमें कौरवों को सबक सिखाना चाहिए, अभी युद्ध की तैयारी करते हैं, बलराम जी बोला शांति शांति शांति, ना ऐसा मत करो। कौरवों में और यदुओं में बहुत अच्छा संबंध है। आपको मालूम है कौरवों में और यदुओं में क्या संबंध है? यदुओं में और कौरवों में क्या संबंध है कोई संबंध कि नहीं है? समधी हैं, दोनों समधी हैं। जो यदुओं की तरफ से कुंती महारानी का विवाह किससे हुआ? पांडु से। और कुरुओं की जो स्त्री थी रोहिणी देवी, उनका विवाह किससे हुआ? वसुदेव से। तो दोनों घर की लड़कियां एक दूसरे के यहाँ गई हुई हैं, तो दोनों संधि हैं। और बलराम जी हैं रोहिणी नंदन, तो एक प्रकार से बलराम जी कौरवों के नाती हो गए। और जितने भी कौरव थे सबके सब बलराम जी को बहुत प्रेम करते थे, नाती थे उनके। और बलराम जी दुर्योधन को युद्ध कला भी सिखाते थे। तो बलराम जी ने कहा मेरा अच्छा संबंध है, अभी ऐसे युद्ध नहीं करते, हमारे अच्छे संबंध क्यों बिगाड़ते हो, जाके मुझे बात करने दो। सब ने बोला ठीक है, आप जाके जरा इस मामले को सुलझाइए। तो बलराम जी वरिष्ठ यदुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ और उद्धव जी को साथ लेकर जाते हैं। और जब हस्तिनापुर के बाहर पहुंचते हैं तो एक कैंप में रुक जाते हैं और उद्धव जी को भेजते हैं कि आप संदेश लेके जाइए और ये संदेश धृतराष्ट्र को दीजिए, क्योंकि सारे की सारे ये मसाल की जो जड़ है ये धृतराष्ट्र ही होगा, इसके पास चाहिए। अब जैसे उद्धव जी वहाँ पहुँचते हैं तो सारे के सारे कौरव जब उद्धव जी को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उद्धव जी का स्वागत करते हैं। और उद्धव जी बताते हैं कि बलराम जी आए हैं। सब बड़े उत्साहित हो जाते हैं, बलराम जी से मिलने जाएंगे। और सब बलराम जी से मिलने जाते हैं। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, सबके सब मिलने जाते हैं। पांडु लोग नहीं जाते। जो पांडव लोग हैं बताया जाता है इस समय वो हस्तिनापुर में नहीं थे, वो इंद्रप्रस्थ में थे। तो ये सब जाते हैं वहाँ पे और बलराम जी को देख के बलराम जी को बहुत सी भेंटें देते हैं, गाय दान में देते हैं और सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। सब उनको प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह इतने वरिष्ठ हैं, वो भी बलराम जी के चरणों को छूते हैं
और फिर बलराम जी अब पूछते हैं आपस में क्या हालचाल है। फिर बलराम जी गरज के गर्जना करते हैं कि मैं राजा उग्रसेन का संदेश लाया हूं। उग्रसेन जो राजाओं के राजा हैं, इंद्र भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपको आदेश देता है कि शाम वो लक्ष्मणा को तुरंत लौटा दो। इतने वो जिसे कहते हैं आदेश के साथ जोर से गरज के कौरवों को आदेश दिया। कौरवों के अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचे। अरे अच्छा, पहले तो इनके बेटे ने आगे हमारी बेटी को उठा लिया और अब आके हमें आदेश दे रहे हैं। तो कौरवों के अहंकार को ठेस पहुंचा। उन्होंने भी गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया। ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है, तो गुस्सा आ जाए एक बारी तो कौरवों ने बोलना शुरू किया। क्या शुरू किया? देखो तो इन यदुओं को हमने इनको राज्य दिया और आज पैर की जूती सर पे चल रही है। इनकी जगह तो हमारे पैरों में है, अब ये हमारे सर पे चढ़ने को तैयार हो गए हैं। आपको मालूम है ये कौरव और यदु कौन है? जो यादव्स हैं ये राजा यदु की संतान हैं और यदुवंश, और जो कौरव हैं ये राजा पुरु के वंश में आते हैं और दोनों ही ययाति के पुत्र हैं। आपने कथा सुनी हुई है ययाति की, भागवतम के 9वें स्कंद में आती है। कितने लोगों ने नहीं सुनी ययाति की कथा? नहीं सुनी? अच्छा, राजा ययाति हैं, संक्षिप्त में बताते हैं। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ था, शायद उसका नाम देवयानी था। हाँ, और विवाह भी किया उन्होंने देवयानी से, लेकिन साथ में उनका प्रेम चल रहा था एक और राजकुमारी से जिसका नाम शर्मिष्ठा था। तो जब शुक्राचार्य को ये मालूम चला तो शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, नपुंसक बन जाओ। तो बेचारे परेशान हो गए और बोले अब इस श्राप से कैसे निपटारा होगा? अगर मैं वृद्ध हो जाऊंगा आपकी पुत्री भी सुखी नहीं रहेगी। बोले अगर आपके 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों में से अपने किसी यौवन को बदल लेंगे, अपना वृद्धावस्था अपने पुत्र को दे दें और पुत्र का यौवन आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ययाति अपने सभी पुत्रों के पास गया, सबने मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र थे उनके पुरु, वो तैयार हो गए। इतनी पितृ भक्ति थी उनमें कि मैं वृद्ध बन जाऊंगा, आप मेरा यौवन ले लीजिए। तो ययाति ने पुरु से ये एक्सचेंज किया और बाद में ययाति ने हजारों वर्ष तक भोग करने के बाद दोबारा से पुरु यौवन हो गए। और ये जो पुरु के वंशावली में कौरव आते थे और ययाति ने बोला कि आगे से तुम ही राजा बनोगे। और जो यदु थे उनके बड़े बेटे थे, वहाँ से यदुवंशी आए थे। तो कौरवों को ये अभिमान था कि हम पुरु के वंश के हैं और हमें राज्य दिया गया था और हमने राज्य का कुछ हिस्सा यदुओं को दे दिया था। तो बोले ये तो हमारे पैर की चप्पल के समान है। अब इनका इतना दुस्साहस बढ़ गया कि हमारे सर पे बैठने लगे हैं। ऐसे बोलने लगे और कहने लगे हम पहले काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि ज़्यादा ही ये राजसी ठाट बाट उपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े रथों में बैठते हैं, राज सिंहासन में बैठते हैं, चामर इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो हमने ध्यान नहीं दिया, गलती कर दी हमने, उसी समय रोक देना चाहिए था। अभी बहुत सर चढ़ गए हैं, इनको मालूम नहीं हम कौन, हमारी स्थिति क्या है। और बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि जो उग्रसेन है उसकी आज्ञा का पालन तो इंद्र भी करते हैं। बोले इंद्र करता होगा, हम नहीं करते। इंद्र हमारी आज्ञा का पालन करता है, जब तक हम किसी को ना दें कोई हमसे छीन नहीं सकता। इंद्र तो हमारे सामने मेमने के समान है और हम शेर हैं। ऐसा सब बोल के चले गए। सब लोग चले, खाली भीष्म पितामह वहाँ पर रहे। तब तो बलराम जी चुपचाप सबकी सुनते रहे। जब सब चले गए तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और जोर से हंसे कि देखो तो सही इन कुरुओं को कितना अभिमान है। सारे यदु इनसे लड़ने को आ रहे थे, मैंने उनको रोका। मैं इनका भला चाहता था और मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दो तो मूर्ख को गुस्सा आता है, लेकिन अब इनको कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हैं कि राजा उग्रसेन क्या है, इंद्र का कहना, इंद्र कौरवों का कहना मानते हैं। राजा उग्रसेन को कोई अधिकार ही नहीं है राज सिंहासन में बैठने में। और उग्रसेन को तो छोड़ो, कृष्ण की भी ये निंदा कर रहे हैं कि कृष्ण को भी कोई अधिकार नहीं है राज सिंहासन में बैठने को। उस कृष्ण को जिसकी सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करते हैं, उस कृष्ण को जिनको भगवान इंद्र ने
सुधर्मा सभा दे दी, परिजात वृक्ष दे दिया। उस कृष्ण को, जिसके चरणों की धूल को शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता अपने सर पे लगाते हैं, मैं उनके चरणों की धूल को अपने सर पे रखता हूँ, उस कृष्ण को राज सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। इनकी इतनी औकात, ऐसी बोल दिया उन्होंने। इतना क्रोध आया बलराम जी को। बलराम जी ने जो अपना हल था बहुत बड़ा कर दिया, है ना, और पूरे हस्तिनापुर को खींचना शुरू कर दिया, और हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी में डुबोने लगे। सोचिए क्या शक्ति है बलराम जी। और पूरा हस्तिनापुर हिलने लगा। ऐसा नहीं कि भूचाल आ रहा है, यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा भूचाल आता है, हम हिल जाते हैं। पूरे शहर को खींच लिया और गंगा में डुबोने लग गए। पूरा शहर, आप सोचिए क्या हालत हो गई होगी। सारे कौरव घबरा गए और उनको पता चल गया कि बलराम जी का एक क्रोध है। बोले हम कुछ नहीं कर सकते अब, और खींच के गंगा जी की तरफ ले जा रहे हैं। और गंगा जी को आदेश दिया, मैं पूरे हस्तिनापुर को डुबो रहा हूँ, सबको डुबो देना, सांब और लक्ष्मणा को छोड़ के। भगवान है, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। पूरा मालूम था क्या करना, और खींच रहे हैं ऐसे। और जब मालूम चला कि आप बलराम जी के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो बलराम जी ने बोला कि कुरुओं की जो मानसिकता है पशुओं के समान है। अब ये पशु हैं, केवल लाठी से चलेंगे। मैं इनसे बात कर रहा था, ये समझे नहीं, अब इनको लाठी मारनी पड़ेगी। तो जब सारे के सारे कौरव बाहर आ गए, भागते हुए, हाथ जोड़ते हुए, त्राही माम, बचाइए बचाइए बचाइए। बोले आप तो हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, आपको क्रोध भी आया तो हमारे भले के लिए ही है। आपका क्रोध कोई रजोगुण से उत्पन्न या तमोगुण से उत्पन्न नहीं है, हमारे भले के लिए क्रोध है। तो आप सब कारणों के कारण हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। और आगे किसको लेके आए? लक्ष्मणा और शाम को आगे रखा कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। और फिर दुर्योधन ने बोला ये मेरी प्यारी बेटी है, इसको मैं बहुत दहेज दूंगा। और भागवत में दिखाया, लिखा है क्या दहेज दिया उन्हें, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 1200 हाथी दिए, और लिखा हुआ है 60 साल के हाथी। 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े, 1000 दासियां सोने से लदी हुई, और कितने ही रथ दे दिए। तो इस प्रकार से उसने उनको दहेज दिया, बहुत गुणगान किया, और बोले आप ले जाइए। फिर बलराम जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले अब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और शाम वो लक्ष्मणा को लेकर बलराम जी द्वारका में वापस चले गए ना। बलराम जी की जय। तो इस कथा से हमें बहुत सी सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं। बलराम जी बता रहे हैं कि क्रोध का उपयोग कब करना चाहिए। इस कथा के उसमें हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जब किसी जीव के अंदर भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति घृणा आ जाए, उस घृणा को निकालना भगवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हैं, बात गंभीर है। किसी भक्त के प्रति या भगवान के प्रति किसी जीव के हृदय में घृणा उत्पन्न हो जाए, तो उस घृणा को निकालना इतना आसान नहीं है, केवल बलराम जी निकाल सकते हैं। और कौरव क्या कर रहे थे? बलराम जी की पूजा कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उनको भेंट दे रहे थे, लेकिन कृष्ण की और यदुओं की निंदा कर रहे थे। इसको बोलते हैं भेद। राजनीति में 4 तरीके होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब क्या होता है? किसी को समझाना बुझाना, समझा बुझा के उसको सिखा देना। दाम का मतलब क्या होता है? उसको कोई पोस्ट पोजीशन दे देना। दंड का मतलब क्या होता है? उसको दंड देना। और भेद का मतलब क्या है? कि भेद उत्पन्न कर देना, डिवाइड एंड रूल कर देना। तो कौरवों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल। बलराम जी की तो प्रशंसा की, कृष्ण और यदुओं की निंदा की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे सामने लोग आएंगे, हमारी बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन हो सकता है हमारे किसी वैष्णव की, गुरुजनों की, हमारी संप्रदाय की, हमारी संस्था की निंदा करे। और कई बारी इसको बंद कर, तो कई बारी हम वो निंदा सुन लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे संबंध खराब ना हो जाए ना। बलराम जी के कौरवों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो
तो बलराम जी के कौरवों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उनके नाती थे। तो कौरवों ने सोचा इसकी तो इनको हम गायें दान में दे रहे हैं, इतनी भेंटें दे रहे हैं, और थोड़ी यदुओं की निंदा कर दी, कृष्ण की निंदा कर दी, तो कोई बात नहीं। बलराम जी अगर कोई साधारण व्यक्ति होते, चलो कोई बात नहीं, मेरे तो संबंध अच्छे हैं, मैं इनसे क्यों बिगाड़ूं। नहीं, बलराम जी हमें सिखा रहे हैं ऐसी स्थिति में हमारी श्रद्धा और हमारी वफादारी की परीक्षा होती है ना? हमारी श्रद्धा कितनी है अपने गुरुजनों में, अपनी संप्रदाय में, अपनी संस्था में, वैष्णव में, और हम कितने वफादार हैं। अगर कोई हमारे सामने वैष्णव की निंदा करे, चाहे हमारे उससे बड़े अच्छे संबंध है, हमारा गुणगान कर रहा है, लेकिन दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है, हमारे गुरुजनों की निंदा कर रहा है, हमारी संस्था की निंदा कर रहा है, संप्रदाय की निंदा कर रहा है, तो क्रोध दिखाना चाहिए ना। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध का उपयोग भी भगवान की सेवा में करना चाहिए कि जो भक्तों से द्वेष करते हैं, गुरुओं से द्वेष करते हैं, उनके प्रति क्रोध दिखाना चाहिए ना। और ये हमारी वफादारी है और हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। कई बार हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आता है, तो भक्त लोग उस कष्ट को सह रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आएंगे, बोले और करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम पहले ही बोलते थे आपको इतना हरे कृष्णा मत करो, आपके साथ बुरा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हो जाता है, भक्त पे विचलित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ियां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। जब हम भक्ति करना शुरू करें तो हमें ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि भक्ति करेंगे अब मेरी सारी भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं, भक्ति करेंगे भौतिक समस्याएं आ सकती हैं, भक्ति करने का क्या लाभ होगा कि इन भौतिक समस्याओं से बड़ी आसानी से हम निकल जाएंगे। जिस प्रकार से आप एक सड़क में जा रहे हैं जिसमें बहुत गड्ढे हैं और आप एक साइकिल रिक्शा में बैठे हैं, साइकिल रिक्शा में बैठे हैं, गड्ढों से ऊपर से निकल रही है साइकिल रिक्शा, बहुत उछलेगी साइकिल, लेकिन उसी सड़क पे जो गड्ढों से भरी हुई है, आप एक बहुत बड़ी ऑडी गाड़ी में निकल रहे हैं जिसके बड़े शॉक एब्जॉर्बर है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हम भक्ति शुरू करते हैं बहुत ही क्लेश आएंगे, लेकिन हमारे शॉक एब्जॉर्बर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कष्ट जरूर आएंगे। उस समय हमने श्रद्धा वफादारी बना के रखनी। हम एक ऐसे परिवार को जानते हैं जो कि दीक्षित भक्त हैं, उनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, पूरा परिवार उनकी सेवा करता था, और उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, तैयारियां चल रही थी। घर में एक मेड सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट ने देख लिया कि घर में बहुत सोना आ रहा है, साड़ियाँ आ रही हैं, बातचीत चल रही है, तो उसने क्या किया, रात को डाकू आ गए, सब लूट के चले गए और पूरे घर वालों को पट्टी बांध के दुर्व्यवहार करके सबका सब लूट के चले गए। और जाते जाते बोल गए तुम भक्त लोग हो इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने देखा जगन्नाथ जी हैं वहाँ पर। उस समय तो परिवार को लगा जगन्नाथ जी ने हमारी रक्षा कर ली, चलो पैसा चला गया, कोई बात नहीं। सुबह सब पड़ोसियों ने आना शुरू किया, ओ हो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो ओ हो इतने का नुकसान हो गया, ओ क्या फ़ायदा हुआ जगन्नाथ जी का, इतनी आप भक्ति करते थे, आपके साथ ऐसा हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, धीरे धीरे बात उनके अंदर चली, बात तो सही कह रहे हैं सब, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। बहुत परेशान हो गए, श्रद्धा हिल गई उनके, बहुत समय लगा दोबारा से श्रद्धा पाने के लिए। तो ऐसी मुश्किलें हमारे जीवन में आएंगी, तो ऐसे में श्रद्धा को बना के रखना है। शास्त्रों में बताया जाता है श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक श्रद्धा को बोलते हैं लौकिक श्रद्धा और दूसरी होती है शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा वो होती है जो कि लोगों से सुन के हमारी बनती है ना, इधर उधर से सुन ली, इस मंदिर में जाओ बड़ा सिद्ध मंदिर है, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, और मुराद पूरी होगी तो श्रद्धा पक्की हो गई। तो लोगों से सुनकर ये श्रद्धा बनती है। और दूसरी श्रद्धा होती है शास्त्रिक श्रद्धा।
तो शास्त्रिक श्रद्धा क्या है? शास्त्रों पर आधारित है। कौन सी श्रद्धा रखनी चाहिए हमें, लौकिक या शास्त्रिक? हाँ। अगर हम शास्त्रिक श्रद्धा कैसे विकसित होगी? हैं? भक्तों के संग में रहकर शास्त्रों को पढ़ना और सुनना है। अगर भक्तों के संग में रह रहे हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे तो हमारी श्रद्धा लौकिक ही रह जाएगी। प्रभुपाद जी ने रात को जाग कर, प्रभुपाद जी पूरे दिन में केवल 3 घंटे विश्राम करते थे और इतनी वृद्ध अवस्था में भी रात को जाग के वो लिखते थे। किस लिए शास्त्र लिखे उन्होंने? हम सब पढ़ें। शास्त्र का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इस संसार को शास्त्र चक्षुओं से देखते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं। जब शास्त्र नहीं पढ़ते तो लौकिक दृष्टि से देखते हैं। लौकिक दृष्टि क्या है? कि हम इस संसार में किसी ना किसी ढंग से सुखी हो जाएं, इसे संसार में दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन जब शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान गीता में क्या कर रहे हैं? ये संसार तो दुखालय है, दुख तो आएंगे ही आएंगे। तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, दुखों को देखने का तरीका बदल जाएगा। हम दुखों को भी भगवान की कृपा के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर शास्त्रों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों की हमारी श्रद्धा नहीं है, तो दुख आते ही हम विचलित हो जाएंगे। कई बार लोग अपने इष्ट बदल लेते हैं। आजकल कौन से भगवान की पूजा करने में पूछा जाता है? आजकल मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ, आजकल मैं ये व्रत रख रहा हूँ। भगवान बदलते रहते हैं लोग। नहीं, इससे बदलने से हमारा भाग्य बदलने वाला नहीं है। शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चला के हम भाग्य को बदल सकते हैं। अब देखिए, कथा के बाद प्रसाद बटेगा, ठीक है ना? आप सब लाइन में खड़े हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है। पूड़ी मिलेगी आपको, मेनू बता रहे हैं पहले से आप चावल मिलेंगे, गरम गरम सब्जी होगी, दाल होगी, कुछ मिष्टान होगा। बोले हाँ, बोले थोड़ा और, हाँ थोड़ा पनीर डालो और वेरी गुड, थोड़ा दाल डालो, हाँ गुलाब जामुन 4 डाल दो। और बाद में सब बढ़िया करके एक व्यक्ति खड़ा है हथौड़ा लेके, बोले ये भी प्रसाद का ही पार्ट है, लो टक। बोले नहीं ये मत, नहीं ये लेना पड़ेगा। तो इस ढंग से जिस प्रकार से हमारे जीवन में सुख आ गए हैं, आ रहा है पनीर, आ रहा है गुलाब जामुन, आ रहा है, सुख लग रहा है, हथौड़ा पड़ना दुख भी हमें लेना, वो भी प्रसाद है। यहाँ तो बोलते थोड़ा ज़्यादा दो भाई हथौड़े को नहीं बोले एक और मारो लेकिन जितना पड़ रहा है उसको खाना पड़ेगा, सबको मिलेगा, ये प्रसाद है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसको लेना पड़ेगा। तो ऐसे में श्रद्धा बनाए रखनी है, वफादार रहना है, ये बहुत जरूरी है। और अपनी संस्था के प्रति, ये इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत से बनाई है और इस संस्था का केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों को भगवत धाम लेके जाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रील प्रभुपाद जी एक बार विदेश में गए तो वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा, स्वामी जी भारत से बहुत से गुरु आते हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? बड़ा अच्छा प्रश्न था। प्रभुपाद जी थोड़े गंभीर हो गए और कुछ क्षणों के बाद प्रभुपाद बोले, मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराकर भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। मुझ में और उनमें ये अंतर है। श्रील प्रभुपाद की ये अंतर है। इसीलिए इस संस्था को बनाया गया है। इस संसार में सभी लोग कष्ट भोग रहे हैं, तो अगर हम प्रभुपाद जी के आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते हैं, इस संसार में भी हम सुखी रहेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर को काट के हम भगवत धाम वापस जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? ऐसे क्षणों में हमें अपनी वफादारी बना के रखनी है। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत एक ग्रंथ है, आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ा हुआ है? नहीं है? आप ले जाइए, उसको जरूर पढ़िए। जन्माष्टमी के अगले दिन क्या उत्सव आता है? प्रभुपाद जयंती, प्रभुपाद जी का जन्म उत्सव। तो आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर उत्सव है ये, आप प्रभुपाद के विषय में जानिए कि प्रभुपाद ने कैसे इस संस्था को खड़ा किया। आप पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे उसमें एक अध्याय है कि इस्कॉन में अंदर खतरा क्या हुआ। 1970 की बात है। प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे,
उन्होंने प्रभुपाद के अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रचना शुरू किया, प्रभुपाद की अवहेलना करनी शुरू कर दी, उनको सही ढंग से आदर ना देना, उनकी चिट्ठियाँ आ रही थी उसको उल्टा सीधा पढ़ना। प्रभुपाद समझ के कुछ गड़बड़ है और प्रभुपाद ने पहचान भी लिया कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद इतने दयालु हैं, प्रभुपाद ने इसको सहन किया। कैसे सहन किया? प्रभुपाद ने अपने इन शिष्यों को सन्यासी बना दिया, इनको प्रमोट कर दिया। इसको बोलते हैं सहनशीलता। सहनशीलता का एक अर्थ है जो हमारे साथ गलत करे आप उसके साथ अच्छा करो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से डील करो। बड़ा मुश्किल है कि नहीं? भागवतम में ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है। ध्रुव महाराज की कथा आपने सुनी होगी। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने ध्रुव का अपमान किया और बोला अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान की बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, उनकी कृपा से मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये अधिकार मिलेगा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सको। बहुत उनका अहंकार ठेस पहुंचा, उनको बहुत दुख हुआ, तो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास गए। सुनीति को भी ये खबर मिल चुकी थी, सुनीति बहुत दुखी थी। सुनीति ने जैसे ध्रुव को देखा कि ध्रुव बहुत दुखी है, सुनीति ने पहला आदेश ध्रुव को ये दिया कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके अमंगल की कामना मत करो। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो पहला रिस्पांस क्या होता है? जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके लिए अमंगल निकलता है। प्रभुपाद ने क्या देखा कि ये तीन शिष्य सही व्यवहार नहीं कर रहे, प्रभुपाद ने इनको क्या बना दिया? सन्यासी बना दिया। लेकिन हुआ क्या? जब ये लोग सन्यासी बन गए, भ्रमण कर रहे थे, इन्होंने और गड़बड़ करना शुरू कर दी। अब प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा ही समर्पित हो गए। इन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि श्रील प्रभुपाद स्वयं कृष्ण है। ये बात जब प्रभुपाद को मालूम चली तो बहुत गुस्सा आया। आज भारत में ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं, उनके शिष्यों को भगवान कहते हैं और बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्रभुपाद प्रमाणिक गुरु हैं। प्रभुपाद को ये जान के बड़ा दुख हुआ कि ये मुझे कृष्ण कह रहे हैं। प्रभुपाद ने तुरंत एक्शन लिया और इन तीनों को इस्कॉन से बाहर कर दिया। जब पहली बारी ये लोग प्रभुपाद का अपमान कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि उनके साथ अच्छा किया। लेकिन जब वो प्रभुपाद नहीं बल्कि सिद्धांत के प्रति गलत कर रहे थे, इसको बोलते हैं मायावाद सिद्धांत, कि गुरु को कृष्ण के समान कृष्ण मानना, कि गुरु कृष्ण हैं, तो प्रभुपाद से ये सहन नहीं हुआ। प्रभुपाद ने उनको बाहर कर दिया। तो क्या अर्थ है कि हमें अपनी संप्रदाय, अपनी संस्था के प्रति पूरा वफादार होना चाहिए, उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए, कितने भी संकट क्यों ना। ये हमें बलराम जी इस लीला से सिखाते हैं। जैसे देखिए, एक पिस्टल में कारतूस है और उस पिस्टल से आप कारतूस छोड़ेंगे तो काम करेगी, किसी को मारेगी। उस पिस्टल से मैं कारतूस निकाल दूं और ऐसे फेंकूं, हैंड्स अप, कोई डरेगा उससे? कारतूस खाली में कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं अपने आप को इस इस्कॉन संस्था से अलग कर दूं, बोले अब मैं जाके प्रचार करूंगा, कोई शक्ति नहीं रह जाती। हम लोग हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हम अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम सोचें हमें प्रभुपाद ने फार्मूला बता दिया है, 16 माला करनी है, 4 नियम पढ़ने हैं और बस कुछ पुस्तकें पढ़नी हैं, हम भगवत धाम पहुँच जाएंगे। नहीं, हमें भक्तों के संघ की आवश्यकता नहीं, हमें इस्कॉन संस्था की आवश्यकता नहीं। ये सारी चीज़ें काम तब करेंगे हम भक्तों के हमेशा संग में रहेंगे, प्रभुपाद की शरणागत में रहेंगे। ठीक है? तो बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में अपनी श्रद्धा और वफादारी बना के रखें। कोई हमारे सामने आके दूसरे वैष्णवों की निंदा करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, इस्कॉन संस्था की निंदा करता है, तो हमें शांत नहीं रहना चाहिए, हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो तभी दे पाएंगे जब हमें शास्त्रों का कुछ ज्ञान होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, अब आपको दूसरी लीला सुनाते हैं।
भगवान बलराम जी किसी में अहंकार नहीं देख सकते। एक गोरिल्ला था जिसका नाम था विविध। इसकी कथा सुनी आपने, विविध की कथा, ये भी कृष्णा बुक में है। विविध गोरिल्ला क्या करता था, इसका एक मित्र था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर किसका बेटा था तो मालूम है? नरकासुर भगवान श्री कृष्ण का बेटा था। भगवान का बेटा भी असुर हो सकता है, निर्भर करता है किसका हम संग करते हैं, है ना। तो नरकासुर का वध भगवान ने ही किया, बोले असुर है, उसका वध किया। लेकिन इसका मित्र था द्विविद, और द्विविद को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे मित्र का वध हो गया, अब मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। ये जो असुर होते हैं इतने जिद्दी होते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो हिरण्यकशिपु ने बोला मैं विष्णु का वध कर दूंगा। उनको मालूम हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना अहंकार। तो द्विविद इतना शक्तिशाली था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और ये क्या करता था, इसको इतना अहंकार था, गांवों में जाता था, शहरों में जाता था, गौशालाओं में जाता था, आग लगा देता था। इतना क्रूर, पुरुष और स्त्रियों को उठा लेता था, उनका अपहरण करके गुफाओं में बंद करके बाहर बड़े बड़े पत्थर रख देता था। स्त्रियों का बलात्कार करता था, समुद्र में चला जाता था। उसके इतने भारी भारी हाथ थे, जोर जोर से हाथों को मारता था, सुनामी आ जाती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। तो इतना भयंकर असुर, और कोई इसको रोकने वाला नहीं था। एक बार ऐसी ही शरारत कर रहा था, इसको बहुत सुंदर संगीत की आवाज़ सुनाई दी। और क्या था, साथ में रेवतक पर्वत थे, वहाँ भगवान बलराम कुछ स्त्रियों के साथ रास लीला कर रहे थे, और सुंदर सुंदर मधुर संगीत चल रहा था। आप लोग आगे आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आगे आ जाइए। तो द्विविद क्या किया, आगे आगे आ जाइए। द्विविद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछल रहा है और शोर मचा रहा है, किला 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 बोल रहा है ना, किल किल मचा रखी थी उसने। और वहाँ मधुर संगीत चल रहा है, भगवान बलराम नृत्य कर रहे हैं, और साथ में भगवान बलराम जी वारुणी का पान कर रहे हैं। भगवान बलराम का कल बलराम जयंती है, उनका जो सबसे पसंद वो पेय पदार्थ है उनका वारुणी। वारुणी कोई मदिरा नहीं है, वारुणी शहद से बनती है और ये बहुत मीठा होता है, तो भगवान बलराम को बहुत पसंद है। तो वारुणी का पान कर रहे थे, मधुर संगीत चल रहा था और नृत्य चल रहा था। ये द्विविद क्या करने लगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछल रहा था और किल 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 करके शोर मचा रहा था। स्त्रियों ने देखा एक गोरिल्ला किला 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 कर रहा है, तो उसको देख के हंस पड़ी। वो साधारण सी सरल स्त्रियाँ थी। अब इसकी हिम्मत और बढ़ गई, ये नीचे उतर आया और स्त्रियों के सामने अश्लील हरकतें करने लगा, और भगवान बलराम के हाथ से वारुणी खींच के वारुणी पी ली, और भगवान बलराम के वक्षस्थल पे मुक्का मारा। भगवान बलराम बोले कहाँ से आ गया ये, और फिर क्या किया, जो स्त्रियाँ नृत्य कर रही थी उनके कपड़े छीनने शुरू कर दिए। बलराम जी से अभी सहन नहीं हुआ, बलराम जी के हाथ में मूसल था, उस मूसल से भगवान ने इसके सर पे मारा, इसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। बहुत विशाल काय, और उसको भी क्रोध आया। इसने क्या किया, एक साथ में शाल वृक्ष था, उस वृक्ष को पूरा उखोड़ दिया, बड़ा वृक्ष पूरा उखोड़ दिया, और सारे पेड़ पत्ते जो फूल थे काट दिए। बहुत बढ़िया सोने ऐसे लकड़ है, और उसको उन्हें भगवान बलराम के ऊपर फेंका। बलराम जी के हाथ में मूसल है, जोर से वो लकड़ फेंकी, बलराम ने मूसल से फेंक दिया। उसने दूसरा पेड़ खोला, हिलाया, फिर बलराम जी फेंका, बलराम जी अपने मूसल से फिर उसको मार दिया। ये कौन सा गेम चल रहा है, क्रिकेट की शुरुआत यहीं से। एक एक करके जंगल में जितने पेड़ थे उखाड़ उखाड़ के उसने बलराम जी पे फेंके। बलराम जी ने अपने मूसल से सबको चूर चूर कर दिया, सारे पेड़ खत्म हो गए। फिर बड़ी बड़ी चट्टानें उठाने उसने शुरू की, चट्टानें उठा के बलराम जी को फेंके, बलराम जी ने एक एक चट्टानों को चूर चूर कर दिया, सारी चट्टानें खत्म, सारी पेड़ खत्म। अब द्विविद क्या करे, उसको बड़ा गुस्सा आया। अब बोले ठीक है, अब आके पर्सनल फाइट करता हूँ। बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी,
बलराम जी को आगे उसने मुष्टि मारना शुरू कर दिया। बलराम जी ने बोला मुष्टि मुझे मारना नहीं आता, मुझे कराटे खेलना आता है। बलराम जी ने एक चौप मारा यहाँ पे करने, खट सीधा खून उसका यहाँ से सर कटा और खून निकलने लगा और वहीं उसने शरीर छोड़ दिया। द्विविद बलराम जी की जय। तो ये द्विविद कौन था, इसकी बहुत रोचक कथा है। आपको मालूम है रामायण में ये सुग्रीव का मिनिस्टर था। दो भाई थे, द्विविद और मेद, बहुत ही शक्तिशाली सुग्रीव के मंत्री थे और भगवान राम की सहायता की थी इन्होंने युद्ध में, रावण के प्रति युद्ध लड़ने में। लेकिन हालांकि भगवान की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, इसको बहुत अहंकार था अपनी शक्ति का। और जब रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उसके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो द्विविद के मन में अहंकार आता है, एक साधारण व्यक्ति है, मूर्छित हो गया, मैं ज़्यादा बलशाली हूँ। और लक्ष्मण जी कौन है? स्वयं बलराम जी हैं, गुरु हैं। तो क्या है? वैष्णव अपराध, गुरु अपराध। गुरु को साधारण मनुष्य समझना, प्रामाणिक गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, प्रामाणिक गुरु। भारत में दिक्कत क्या है कि जो बोगस गुरु हैं उनको लोग भगवान मानते हैं और जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। क्योंकि लोग क्या देखना चाहते हैं? चमत्कार। बोले चमत्कार को हम नमस्कार करेंगे, लेकिन वास्तव में वैष्णव सिद्धांत क्या है? पहले नमस्कार करो फिर चमत्कार दिखाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, पहले कुछ चमत्कार दिखाइए फिर हम नमस्कार करेंगे। चमत्कार करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लोग कुछ सिद्धियों से चमत्कार कर देते हैं और फिर अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और साधारण मूर्ख लोग उनको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में गुरु है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। श्रील प्रभुपाद जब एक बार विदेश में गए तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? प्रभुपाद ने बोला नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो रिपोर्टर हैरान हो गया। अभी तक जितने भी गुरु आते थे भारत से वो क्या बोलते थे? यस आई एम गॉड। तो प्रभुपाद ने बोला नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो रिपोर्टर हैरान था। तो प्रभुपाद जी आगे चले गए। प्रभुपाद फिर पीछे मुड़कर वापस आए, बोले नो आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड। तो रिपोर्टर मुस्कुराया, अब शायद अब बोलेंगे आई एम गॉड। प्रभुपाद बोला नो आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रामाणिक गुरु के लक्षण हैं। तो द्विविद ने लक्ष्मण जी का अपमान किया। उसने सोचा लक्ष्मण जी साधारण व्यक्ति हैं, और ये भावना उसके अंदर क्यों आई? उसके अंदर अहंकार था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो अपराध करने की मानसिकता कहाँ से शुरू होती है? कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे बढ़कर कौन। इस संसार में हम जितने लोग हैं, बुरा ना माने, हम सबके अंदर ये मानसिकता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। लोग मुझे पहचान नहीं रहे, लोग मेरे असली पोटेंशियल को जान नहीं पा रहे। मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना। अगर मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ, कम से कम इससे तो बेहतर हूँ, इससे बेहतर हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को मैं सिद्ध कर दें हम इससे बेहतर हैं। इसलिए हमें जब किसी में दोष दिखाई देते हैं बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट एक व्यक्ति तो मिला जो मेरे से नीचे है। और जब तक ये मानसिकता रहेगी हमसे अपराध होंगे। तो लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। अब जब कोई वैष्णव अपराध होता है उसका फल क्या होता है? उसका परिणाम होता है असत संग के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, गलत लोगों का संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो द्विविद जो कि सुग्रीव का पार्षद था, जिसने भगवान राम की सहायता के लिए उनके साथ युद्ध किया, मिथ्या अहंकार के कारण उसने लक्ष्मण जी के पर अपराध किया। अपराध करने के कारण उसके अंदर गलत संग करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने गलत संग किसका किया? नरकासुर का। और जब हम गलत संग करते हैं हमारा सब सत्यानाश हो जाता है, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसा संग करेंगे वैसी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। संगात संजायते कामा। आप यहाँ पर आए हैं, भक्तों के संग में हैं। जब भक्तों के संग में आते हैं हमारे सोच बदलनी शुरू होती है। आप में से कितने लोगों के जीवन में
सकारात्मक परिवर्तन आया जब से आप भक्तों के संग में आए। कितने लोगों के जीवन में नकारात्मक परिवर्तन आया जब से भक्तों के संग में आए, नेगेटिव चेंजेस आए, नेगेटिव चेंजेस आए, नेगेटिव चेंजेस भी आए। अच्छा, बताना हमें, नेगेटिव भी बताना। अक्सर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, हमारी बुरी आदतें छूट जाती हैं, है ना, और हमारे विचार बदलते हैं, हम दूसरों का भला करने की सोचते हैं, तो ये परिवर्तन आते हैं। तो जैसा हम संग करेंगे वैसे हमारे हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो द्विविद जो कि भगवान का पार्षद था, भगवान के युद्ध में जिसने सहायता दी, गलत संग के कारण उसका हृदय बदल गया। हम जानते हैं कैकेयी भगवान राम से कितना प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा राम को चाहती थी, लेकिन जब मंथरा का संग किया हृदय में कितना द्वेष उत्पन्न हो गया। पूरे अयोध्या वासी रो रहे थे। सीता और राम जब जा रहे थे, वो कहती नहीं, आप इन वस्त्रों में नहीं जाओगे, वृक्ष छाल डाल के जाननी पड़ेगी। सब ने बोला ऐसा मत करो, सीता मैया इतनी कोमल स्त्री, उनको वृक्ष की छाल डलवा के भेज रहे हो। लेकिन उसका हृदय इतना कठोर हो गया था, किससे? गलत संग करने से। बहुत सावधान रहना चाहिए। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो इस प्रकार से द्विविद का भगवान बलराम ने वध किया, और भगवान बलराम हमें इसे सिखा रहे हैं कि कभी भी हमें मिथ्या अहंकार के कारण उसमें बह नहीं जाना चाहिए, और हम अपराध ना कर बैठें जो हमें गलत संग में ले जाएगा। भगवान बलराम इसी अहंकार को सहन नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक और कथा आती है। जब महाभारत का युद्ध निर्धारित हो गया कि कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, तो भगवान बलराम ने घोषणा की कि मैं दोनों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि दुर्योधन भी मुझे प्रिय है, भीम भी मुझे प्रिय है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों को मैंने युद्ध कला सिखाई है, तो हम निर्दलीय रहेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और वो तीर्थाटन पे निकल गए कि हम पूरे भारत का तीर्थाटन करेंगे। घूमते घूमते वो नैमिषारण्य में पहुंचे। आप ऐसे कितने लोग नैमिषारण्य गए हुए हैं? बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ हुआ था। तो नैमिषारण्य में गए तो वहाँ सब ऋषिगण एकत्रित थे और बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। तो जैसे ही उस सभा में बलराम जी ने प्रवेश किया, सभी ऋषिगण खड़े हो गए अपने स्थान से, और उस समय व्यासासन पे रोम हर्षण सूत बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। बलराम जी ने इसको देख लिया। अक्सर अगर हम व्यासासन पे बैठे हैं और कोई सभा में सम्मानित व्यक्ति आता है, तो व्यासासन को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो व्यासासन पे बैठे व्यक्ति को उठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर साक्षात भगवान ही आ गए, जिनके लिए कथा हो रही है, जिनके लिए यज्ञ हो रहा है, तो उनको तो सम्मान देना बनता ही बनता है। सामने भगवान आ गए, सारे ब्राह्मणों ने पहचान लिया बलराम जी स्वयं भगवान है, उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन रोम हर्षण सूत बैठे के बैठे रह गए। और भगवान बलराम जी ने इसको नोट कर लिया कि सब ब्राह्मणों ने मुझे आदर दिया, सब ब्राह्मण इस रोम हर्षण सूत को आदर दे रहे हैं, और ये रोम हर्षण सूत जात से ब्राह्मण भी नहीं है, ये मिक्स कास्ट का था। मिक्स कास्ट का मतलब है कि पिताजी ऊंची कास्ट के हैं, माताजी निम्न जात की हैं। फिर भी ब्राह्मणों ने इसको ऊंचा पद दिया कि आप व्यास आसन में बैठ के इस पूरे सत्र को हमें मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन बलराम जी पहचान गए कि ये जो व्यक्ति है व्यास आसन में बैठने के योग्य नहीं है, ये धर्मध्वजी है। धर्मध्वजी का अर्थ होता है जो धर्म की ध्वजा लेके घूमते हैं, लेकिन वास्तव में धार्मिक नहीं है। दिखाते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन भगवान से कोई श्रद्धा, भगवान से कोई प्रेम नहीं है। सामने भगवान आ रहे हैं, उनका ये कर्तव्य था कि भगवान का गुणगान करें, भगवान को आदर देने के लिए खड़े हों, उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनकी जय बोलें, कुछ तो बोलें। ऐसे कैसे बैठे रहे अहंकार से? तो बलराम जी ने बोला, मैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करने आया हूँ, ऐसे धर्म ध्वजियों का नाश करने आया हूँ। हालांकि बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकले थे, बोले फिर भी मुझे इसका नाश करना है। तो बलराम जी ने क्या किया? एक घास का तिनका उठाया, बस घास का तिनका ले जाके उसकी गर्दन पे रख दिया, गर्दन कट गई। ये भगवान की शक्ति है।
हम प्रयास करें ऐसा, घास का तिनका उठाएं और घास के तिनके से गर्दन काट दें। बोले कैसे हो सकता है? भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने गर्दन काट दी। आप देखिए मर्डर, व्यास आसन के ऊपर मर्डर व्यास आसन में वक्ता बैठा है, ऑडियंस में से एक व्यक्ति आता है, ऐसे घास का तिनका उठाता है, गर्दन कट गई। सारे बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण, हाहाकार मच गया, हा 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 ये क्या है। सारे ब्राह्मण ने बलराम जी को बोला, अरे हमने तो इनको आशीर्वाद दिया था लंबी आयु का, हमने इनको आशीर्वाद दिया था अच्छे स्वास्थ्य का, हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि इंद्रिया इनकी सबल रहे जब तक ये यज्ञ चलता रहे, ये कैसे कर दिया, आपने वध कर दिया। बलराम जी अपनी विनम्रता दिखाई। बलराम जी ने ऐसा नहीं किया, वही घास का तिनका इनकी तरफ दिखाया, खबरदार चुप रहो तो आपका गला भी काट दूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा आपने इनको आशीर्वाद दिया लंबी आयु का, अच्छे शरीर, अच्छे स्वास्थ्य का, तो मैं क्या इसको जीवित कर दूं? बोले नहीं, आप जीवित मत कीजिए, आप तो स्वयं भगवान हैं, नहीं कुछ कीजिए, क्योंकि हमने इनको ब्राह्मण का आसन दिया। हालांकि ये जात से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी शास्त्रों में निपुण हैं, हमने इनको व्यासासन पे बिठाया, ये ब्राह्मण ही हैं। अब आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लग गया, तो कुछ कीजिए। बोले आप बताइए क्या करना है? तो देखिए स्वयं भगवान हैं, लेकिन ब्राह्मणों से विनम्रतापूर्वक पूछ रहे हैं कि आप बताइए मुझे क्या पश्चाताप करना है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मणों ने बोला, कुछ ऐसा कीजिए हमारे वचन भी सत्य रहें और आपने जो किया वो भी ठीक रहे। तो बलराम जी ने बोला, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपने जो आशीर्वाद इनको दिए वो सारे के सारे इनके पुत्र को लगेंगे। तो उनका पुत्र भी उस सभा में था, उसका नाम था उग्राश्रिवसुत। बोले इसकी लंबी आयु होगी, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये इस व्यासासन में बैठ के सारा का सारा ज्ञान देगा। तो उसके पुत्र को व्यासासन में बिठाया गया। बोले ठीक है, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सारे ऋषियों ने बोला कि आप हम पे एक सेवा कीजिए कि एक असुर है जिसका नाम है बलवल। ये असुर क्या करता है, आकाश में उड़ता है, बहुत भयंकर असुर है, और जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो आकाश से मल मूत्र पस खून हड्डियाँ और मांस मदिरा की वर्षा करता है और सारे यज्ञ स्थली को दूषित कर देता है। उसका भी थोड़ा निपटारा कर दीजिए। भगवान बलराम का हो जाएगा, ये तो छोटी सी बात है। और मुझे पश्चाताप में क्या करना होगा? बोले पश्चाताप में आपको ये करना होगा क्योंकि आपने ब्राह्मण का वध किया है, लोगों को सिखाने के लिए यजद आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जनसाधारण उनका पालन करते हैं, तो आप 12 मास के लिए पूरे भारत का तीर्थाटन कीजिए, तपस्या करते हुए पूरे ध्यान के साथ कीजिए। भगवान को कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बलराम जी ने विनम्रतापूर्वक इस आज्ञा को स्वीकार किया। और बोले अभी बलबल कब मिलेगा? बोले पूर्णमासी के बाद जब अगला दिन आता है, हम यज्ञ करते हैं तो बलबल आता है और हमारे यज्ञ स्थली को दूषित करता है। ऐसे आया, पूर्णमासी का अगला दिन था, बलबल पूरे आकाश में धूल मच गई, जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, और तभी देखते हैं वर्षा शुरू हो गई, मल मूत्र हड्डियाँ गिर रहे हैं, पस गिर रहा है, खून गिर रहा है, और कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा राक्षस आता है, लंबा चौड़ा उसका शरीर, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और बड़ी बड़ी उसकी आंखें और बड़े बड़े उसके दांत। बलराम जी क्या करते हैं, अपने हल को बड़ा करते हैं, उसको आकाश से नीचे खींचते हैं, और दूसरे हाथ में मूसल से उसको मारते हैं, ख़त्म, वहीं पे ख़त्म। चलो बलराम जी की जय। और सभी के सभी ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और फिर बलराम जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, और पूरे भारत का भ्रमण करते हुए सारे तीर्थ स्थानों में जाते हैं। भागवतम में वर्णन आता है, दक्षिण भारत में जाते हैं, तिरुपति में जाते हैं, रामेश्वरम में जाते हैं, और उसके बाद पश्चिमी भारत में भी जाते हैं, उत्तरी भारत में पूरा प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा सब होते हुए, और पूर्वी भारत की ओर भी जाते हैं। पूर्वी भारत में सब स्थानों में जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर, जगन्नाथपुरी को। क्यों नहीं जाते जगन्नाथपुरी में? हाँ जी, हाँ, क्योंकि वहाँ खुद विराजमान है, तो अपनी पूजा कैसे करेंगे? जगन्नाथपुरी नहीं जाते, बाकी सब स्थानों में जाते हैं।
तो इस तरह जब घूम रहे होते हैं तो उनको मालूम चलता है कि महाभारत का युद्ध अब लगभग समाप्त हो गया है और भीम और द्रोण आपस में उलझे हुए हैं, उनका जो है गदा युद्ध चल रहा है। तो बलराम जी को मालूम चलता है ये, तो बलराम जी सोचते हैं कि इन दोनों के युद्ध से कोई लाभ नहीं होने वाला, मैं जाके इनको समझाता हूँ। तो बलराम जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे युधिष्ठिर भी हैं, कृष्ण भी हैं, अर्जुन हैं, नकुल और सहदेव हैं। वो देखते हैं अचानक बलराम जी आ गए, सब चुप रहते हैं, ये क्यों आ गए। उनको ऐसा लगता है ये कहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे दुर्योधन को मत मारो, कि दुर्योधन को बहुत प्रेम करते हैं, कहीं उसकी साइड तो नहीं ले लेंगे, कुछ कहते नहीं। बलराम जी भी समझ जाते हैं। लेकिन जब बलराम जी समझते हैं कि इतने दिनों से इन दोनों का युद्ध चल रहा है, तो बोलते हैं युद्ध मत लड़ो, इस युद्ध से कुछ लाभ नहीं होने वाला, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हो। भीम भौतिक शक्ति में ज्यादा है और दुर्योधन युद्ध कला में तेज है, लेकिन तुम दोनों लड़ते रहोगे, परिणाम आने वाला नहीं है। तो गुरु अपने दोनों शिष्यों को कह रहा है युद्ध बंद कर दो, लेकिन दोनों ने नहीं सुनी, क्योंकि भीम के अंदर इतना क्रोध था दुर्योधन को लेकर और दुर्योधन के हृदय में भीम को लेकर इतना द्वेष था। सुनी नहीं, गुरु की नहीं सुनी और युद्ध लड़ते रहे। आप देखिए कैसा लगेगा, आपने किसी को ट्रेन किया, सिखाया सब कुछ, और आप बोल रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा। माता पिता को गुस्सा आया था, बच्चे कहना नहीं मानते, बोले हमने पाला पोसा, हमारा कहना नहीं मान रहा, उनको भी गुस्सा आना चाहिए। लेकिन बलराम जी की विनम्रता है। बलराम जी ने सीखा ठीक है, आप मेरा कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब एक कृष्ण की इच्छा है, और चुपचाप वहाँ से चले गए द्वारका वापस। तो बलराम जी हमें विनम्रता सिखा रहे हैं। बलराम जी सर्वशक्तिमान है। बलराम जी को अगर क्रोध आता, भीम और दुर्योधन दोनों को खत्म कर सकते थे वो कि मैंने सिखाया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, श्राप दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन सोचा ये युद्ध लड़ रहे हैं और मैं आज्ञा दे रहा हूँ फिर भी उसका पालन नहीं कर रहे, निश्चित रूप से कृष्ण की इच्छा है। तो कई बारी हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं होता, तो ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए, क्या है, भगवान की इच्छा है। कई बारी जब हमारी योजना पूरी नहीं होती, हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। भागवतम के 6वें स्कंद में राजा चित्रकेतु की कथा आती है। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं। कितने दुखी थे, बहुत दुखी। तो एक बारी नारद मुनि उनकी सभा में आते हैं, बोले इतने दुखी क्यों हो? बोले कोई संतान नहीं है। नारद मुनि ने अपनी योगी शक्तियों से कहा, बोले आपकी संतान नहीं होगी, लेकिन मुझे संतान चाहिए, लेकिन अगर संतान होगी आपको हम संतान दे सकते हैं, लेकिन यही संतान आपके दुख का कारण भी बनेगी। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी बिगड़ी हुई संतान होगी, दे दो, कुछ तो दो संतान। ठीक है, आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। तो उनकी जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम था कृताद्युति। तो वो गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने संतान को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इतने वर्षों के बाद उसकी इच्छा पूरी हुई और राजा कृताद्युति से बहुत प्रेम करने लगा, सारा ध्यान उसी पे देने लगा, उस संतान पे देने लगा। अब बाकी जो 99,99,999 रानियाँ थी, उन पर कैसी बीती होगी। उन्होंने सोचा राजा हमें ध्यान ही नहीं देता, हम तो नौकरानी बन गई। सबके हृदय में द्वेष उत्पन्न हो गया और सबने योजना में क्या किया कि ये सारे फसाद की जड़ क्या है, ये संतान ना। तो उन्होंने क्या किया, मिल के उसको जहर दे दिया। ठीक है, और जहर पी के उस संतान का नाम रखा गया था हर्ष शोक, कि हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा। जब छोटी सी संतान जो इतने सालों बाद प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु हुई, उसका वध हो गया, राजा भी बहुत करा रहा है और उसकी पत्नी भी बहुत रो रही है। और उसकी पत्नी विलाप करके क्या कर रही है, भगवान को गालियाँ दे रही है कि विधाता को आता ही नहीं इस सृष्टि कैसे चलानी है। विधाता छोटे बच्चे की तरह है, उसको पता ही नहीं है ऐसे बच्चे को मारना चाहिए क्या, उसको इतनी भी बुद्धि नहीं है। तो जब चीज़ें वस्तुएं हमारे योजना के अनुसार नहीं होती,
तो हम भगवान को भी दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरे व्यक्तियों को दोष देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा कि जब वस्तु में मेरे हिसाब से ना चले, मेरी योजनाएं पूरी ना हो, तो भगवान की इच्छा है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, योजनाएं जरूर बनानी चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान है, बिना योजना बनाए नहीं रहेगा। हम भक्ति में भी सेवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बारी योजनाएं पूरी होती हैं, कई बारी योजनाएं पूरी नहीं होती। तो योजनाएं बनाना हमारे हाथ में है, उनका फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कई बारी हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, कई बारी हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, कई बारी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना सुन लेते हैं तो कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो पता नहीं भगवान को क्या हो गया भगवान का मूड ठीक नहीं है। भगवान का मूड कभी खराब नहीं होता। गॉड मीन्स ऑल गुड, वो हमेशा ही कृपा करते हैं। तो फिर हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं करते भगवान? तो जब हम प्रार्थना करें तो हमें इस ढंग से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भगवान बुद्धि हमारी, शक्ति तुम्हारी, प्लानिंग मेरी चलेगी, जो मैं चाहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी प्लानिंग पूरी कर सकूं, तो बुद्धि मेरी, शक्ति तुम्हारी, उसमें काम नहीं चलेगा। प्रार्थना करें क्या? बुद्धि भी आपकी और शक्ति भी आपकी। जो मेरे लिए अच्छा है आप करिए, जो आप करेंगे उसको मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से ये विनम्रता है। तो बलराम जी हमें आज के हमने जो प्रसंग चर्चा किए कि पहले उन्हें शाम के विवाह में बताया कि भेद, कोई हमारे सामने वैष्णवों की निंदा करे, संस्था की निंदा करे, तो अपनी श्रद्धा और वफादारी बना के रखनी है। फिर हमने द्विविध के प्रसंग में देखा कि भगवान मिथ्या अहंकार सहन नहीं करते। रोमहर्षण सूत्र के क्लेश में देखा कि भगवान मिथ्या अहंकार नहीं करते। और फिर हमने देखा जिस प्रकार से दुर्योधन और भीम को उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश का पालन नहीं भी हुआ, तो भगवान ने इसको भगवान की इच्छा माना और विनम्रता का प्रदर्शन किया। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हमारे प्रभु जी ने बताया हुआ है कि जो वर्ण के आधार पे जो है जातिवाद का बताया, जो जातिवाद नहीं होती थी वो उनके कर्म के अनुसार वर्ण डिसाइड थे। तो जो रोमहर्षण है तो उनमें आपने बताया कि उनकी माता नीच और पिता उच्च कोटि के थे, तो वहाँ पे ये जो वर्ण है ये कर्म के आधार पे ना होके जातिवाद का जो नहीं, जाति के आधार पे नहीं था उनको, क्योंकि वो व्यास जी के शिष्य थे, तभी उनको, हालांकि वो निम्न जाति के थे, उनको व्यास आश्रम पे बिठाया गया। सारे ब्राह्मणों ने अपने से ऊंचा स्थान दिया। तो बलराम जी को ये गुस्सा आया कि ये बैठ तो गया, इसने व्यास देव जी का शिष्य है, ये सारे पुराणों इतिहासों में पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई अच्छे गुण विकसित नहीं हुए। शास्त्रों को पढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए? हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होने चाहिए। हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान बनने के लिए नहीं, अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए। हालांकि ब्राह्मणों ने सोचा कि व्यास देव जी का ये शिष्य है, इसने सारे पुराण पढ़े हुए हैं, ये व्यास आसन पे बैठ सकता है, लेकिन वास्तव में उसने अच्छे गुणों को विकसित नहीं किया था, इसलिए उसकी हत्या की। मुझे एक क्वेश्चन जो दुर्योधन का आपने बताया है ना, जैसे ये महाभारत के युद्ध के बाद की लीला है, जो द्वारिका लीला है ना, उसमें जैसे दुर्योधन कभी भी कृष्ण भगवान को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, हमेशा ग्वाला ऐसे संबोधन करते थे। तो जो उनके बेटे सांब की जो लीला है वो महाभारत के युद्ध के बाद की है या पहले की? पहले की। पहले की है। पहले। रिस्पेक्ट तो तब भी नहीं देते? हाँ, तब भी नहीं देते, तभी तो बलराम जी को क्रोध आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे काफी बार हमारा मन दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि आत्मा भी ऐसे रोने को हो जाती है, हमें उस सिचुएशन का पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हम एक अकेले और शांत उसमें वातावरण में जाने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई बात ना करे,
हमें कोई परेशान ना करे, और लेकिन रीजन का हमें पता नहीं चलता है, ऐसा क्यों? अच्छा है कि आप बड़ी ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और आज के संसार की ऐसी मुश्किल परिस्थिति है कि सबके साथ ये समस्या है, और बहुत ही एक प्रकार से हतोत्साही डिप्रेसिंग वातावरण आसपास लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। कृष्ण जो हैं सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आप ऐसा अगर मन हो रहा है आपका, एकांत में जाके माला उठाइए और हरि नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैष्णव भजन उठाइए, भगवान को पुकारिए, वैष्णव सॉन्ग गाइए, कोई शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। तो जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे मौके फिर कम होते जाएंगे, आपका ऐसा मूड फ्लक्चुएशन कम होता जाएगा, क्योंकि आपके मन में अगर कृष्ण का निवास हो गया तो आप हमेशा उत्साहित रहेंगे। आप खुद भी उत्साहित रहेंगे और जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको भी उत्साहित करेंगे। ये हमारी सेवा है। हमने सबके जीवन में आशा लानी है, सबके जीवन में खुशियाँ उत्साह लाना है, नकली नहीं असली, और वो असली आएगा उनको कृष्ण से जोड़कर। उसके लिए मुझे भी अपने आप को कृष्ण से जोड़ना है, ठीक है ना? एक प्रभु जी जैसे व्रत करते हैं, तो जैसे मुझसे ही नहीं होता व्रत, तो जैसे व्रत अगर ना करें तो भी भक्ति भाव में हम रह सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम व्रत करेंगे तो ही भक्ति भाव में रह सकते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप भक्ति भाव में रहिए। भक्ति भाव केवल भाव नहीं है, एक्शन भी है। एक्शन क्या है? आप खाली ये बोलते रहें किसी को, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, नहीं, कुछ सेवा नहीं करेंगे। केवल भाव नहीं है, उसको सेवा करके दिखाना है, ठीक है ना? तो सेवा कीजिए। सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान का नाम लेना, और जैसे उत्सव है उसमें सेवा करना, करिए। और व्रत रखने की शक्ति अपने आप को मिलती जाएगी। व्रत भी हम क्यों रखते हैं? वो ऐसी तपस्या नहीं कर रहे, व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को दिखा रहे हैं हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो वो भी शक्ति आपको मिल जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे, आप रखना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि कल आपने बताया था कि कृष्ण को जानना है या भागवत गीता को समझना है तो बल चाहिए, दैट मीन्स बलराम को जानना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो जवाब दिया है, मन में दुविधा है तो कृष्ण के नाम लीजिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि जो शास्त्र है, श्रद्धा है, वो 2 किस्म की है। हाँ, एक है लौकिक श्रद्धा और एक शास्त्र के बेस पे जो श्रद्धा है। और आप जो कल 2 असुरों का वध किया है, उसके अंदर एक आभ्यंतरिक चीज भी बताया जो हमारे ऋषियों ने बताया कि हमारे अंदर जो असुर वृत्ति है उसका दमन है। उसके मतलब शास्त्र के बाहरी एक रूप है, उसके आभ्यंतरिक एक मीनिंग भी है। तो ये दोनों चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके, इसका आप काफ़ी गूढ़ मनन करते हैं, धन्यवाद आपका। तो पहला प्रश्न है कि मन उदास हुआ तो हमने बलराम जी को क्यों नहीं पुकारा, कृष्ण को पुकारा? तो हमने बोला कि बलराम जी के प्रतिनिधि हैं प्रामाणिक गुरु। बलराम जी आदि गुरु हैं और वो हमारे जीवन में आते हैं प्रामाणिक गुरु के रूप में। गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें मालूम चला कि हमने कृष्ण की शरण ले ली है। तो बलराम जी हमें कृष्ण की शरण में ले जा रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। गुरु ने हमें बताया कि कृष्ण की शरण में जाओ, और गुरु किसके प्रतिनिधि हैं? बलराम जी के प्रतिनिधि। तो गुरु की कृपा से ही हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। समझे बात? बलराम जी मेरे जीवन में कैसे आए? गुरु के माध्यम से, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि ये शास्त्रों का इतना गहरा में मतलब बताया गया। हाँ, शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है,
वो बहुत गहरे हैं, उसको पढ़ने के जानने के कई स्तर हैं और हर भक्त अपने अपनी प्रगति के अनुसार, उन्नति के अनुसार उसको समझ सकता है। जो हमारे आचार्यगण हैं, जो कि भगवान के निकट के पार्षद हैं, वो भगवान के हृदय को जानते हैं क्योंकि भगवान से वो प्रेम करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हृदय को जान पाते हैं। तो भगवान, शास्त्र भगवान की वाणी है, तो जो आचार्य भगवान के इतने निकट हैं वो असली भाव को जानते हैं, तो वो कृपावश हमें भगवान का भाव बताते हैं, उससे हम शास्त्रों को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्रों को हमें गुरु और वैष्णवों की आंखों से ही देखना है। अपने आप हम शास्त्र पढ़ेंगे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। गुरु और वैष्णव उसकी दो आंखें हैं, उससे जब शास्त्र पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। ठीक है भाई। इसीलिए शायद आप जब बता रहे हैं कि असुर है, 24 किलोमीटर असुर है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। जब आप आभ्यंतरिक चीज बता रहे हैं तब कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाँ, अब 24 किलोमीटर मैंने नहीं नापा। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्योंकि आचार्य बता रहे हैं राइट कि 24 किलोमीटर लंबा असुर है, तो क्योंकि भगवान से इतने निकट का उनका संबंध है तो हम जान पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो कल बलराम जयंती है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर उत्सव है, इसकी हम तैयारी करें, अपने मन से भी तैयारी करें कि हम बहुत प्रार्थनाएं करें बलराम जी से। क्या प्रार्थनाएं करनी हैं, क्यों प्रार्थनाएं करनी हैं, कैसे भगवान जी का जन्म हुआ और भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। श्रीराम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। दोनों हाथ खड़े कीजिए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, कल को बलराम पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो कल शाम को 4 से 6 यहाँ भी कृष्ण बलराम जी का अभिषेक किया जाएगा। श्री कृष्ण बलराम की जय। तो 4 से 6 इसी प्रकार से 4 से 6 अभिषेक है, 6 से 8 तक है नवरात्रि के प्रसाद। आपसे निवेदन है कि पूरे 4 बजे आपको यहाँ पे उपस्थित होना है ताकि जो अभिषेक है वो अच्छी तरह से आप अटेंड कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, तो साथ में प्रसाद भी शुरू हो जाएगा। तो आप उससे निवेदन है कि बिना प्रसाद ग्रहण